Exam dost, success ka host. Sainik na vodaya mein topmost. Hello and welcome everybody. Today we are going to learn about two of the most powerful, at the same time fascinating natural phenomena, which are lightning and earthquake. Both of these are events that remind us how strong and unpredictable nature can be. Sometimes they can be dangerous, but understanding why they happen and how to stay safe help us to stay protected. Lightning is a huge spark of electricity in the sky, while an earthquake is a sudden shaking of Earth's surface. Both happens because of natural forces that humans cannot control, but science helps us to understand them. By the end of this session, you will be aware about why lightning occurs, why earthquake happen, how they affect us, and the safety measures to protect ourselves. Let us explore these exciting natural events that shape our planet. So basically, talking about lightning, it is a giant electric spark that occurs in the clouds during the thunderstorm. Basically, due to the rubbing of cloud against each other, which builds the electric charge. Earthquake, on the other hand, is the shaking of Earth's surface due to sudden movement in the Earth's crust. So, lightning and earthquake may seem scary, but when we understand science and follow safety rules, we can stay safe. Let us dive deeper and learn more about how these natural forces work. Now we know that there are many types of destructive natural phenomena like drought, floods, cyclones, thunderstorms, hurricanes. Two other destructive natural phenomena are lightning and earthquakes. So due to earthquake, this is the derailing of train. It is not due to earthquake, but there are the destructive phenomena. And two other destructive natural phenomena are lightning and earthquakes. Let us start one by one. Lightning. Now you must have seen sparks on an electric pole when wire becomes loose. This phenomena is quite common when wind is blowing and shaking the wires. आपने देखा होगा कई बार, स्पेशली रेनी सीजन में काफ़ी तेज़ हवा चले तो इलेक्ट्रिक वायर्स आपस में लूज होने के कारण आपस में एक स्पार्क क्रिएट करते हैं. You might also have seen sparks when a plug is loose in its socket. कई बार घरों में भी आपने इस चीज़ को देखा होगा. Lightning is also a electric spark, but on a huge scale. So lightning भी एक electric spark ही है, but बड़े लेवल पर, huge scale पर. In the ancient times, people did not understand the cause of these sparks. बहुत पुराने ज़माने में, Asian period में, they were not aware of this much science. So they did not understand the reason of these sparks. They were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of gods was visiting them. तो ये सोचते थे कि भगवान हमसे नाराज़ हैं. एंशियंट पीरियड के लोग थे, भोले भाले थे, साइंस की इतनी समझ नहीं थी, इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, तो लाइटनिंग को समझते थे कि भगवान हमसे नाराज़ हैं, ये उनका गुस्सा दिखाने का एक तरीका है. नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग is caused by the accumulation of charges in the clouds. We need not be afraid of lightning, but we have to take precautions to protect ourselves from the deadly sparks. Moving further, the sparks that the Greeks knew about. The ancient Greeks knew as early as 600 BC that when amber is a kind of resin, when it was rubbed with fur, it attracted light objects such as hair.
रेजिन को अगर आप फर में रब करें तो हल्की जो वस्तुएं हैं, लाइट जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे बाल है, ये उसे अट्रैक्ट कर लेंगे. You might have seen that when you take off woolen or polyester clothes, your hair stands on end. आपने देखा होगा कई बार स्वेटर उतारते हैं या कोई पॉलिएस्टर का कपड़ा उतारते हैं तो हमारे जो हेयर्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं. If you take off these clothes in the dark, you even see a spark and hear a crackling sound. अगर अंधेरे में आप इस तरह के कपड़े उतारें तो आप स्पार्क को देख भी सकते हैं, बहुत छोटी सी, और एक क्रैकलिंग साउंड भी आप ऑब्जर्व करते हैं. इन 1752 ईयर मेंशन किया हुआ है, पूछा जा सकता है. बेंजामिन फ्रैंकलिन इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, आगे भी आ सकता है. बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट, ये भी पूछ सकते हैं कहाँ से थे, तो अमेरिका से थे. शोड दैट लाइटनिंग एंड स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ्स आर एसेंशियली द सेम फिनोमेना. इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि लाइटनिंग और स्पार्क सेम फिनोमेना, जो कपड़े हम उतारते समय जो स्पार्क बन रहा है और जो क्लाउड्स में जो लाइटनिंग हो रही है, ये दोनों सेम फिनोमेना है. इनका बेसिक जो साइंटिफिक बेसिस है वो सेम है. हाउएवर इट टुक 2000 ईयर्स फॉर दिस रियलाइजेशन टू अकर. लेकिन इस चीज़ को पूरी तरह समझने के लिए हमें 2000 ईयर्स का समय लग गया. दिस एक्सपेरिमेंट हैज़ ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन. व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर, द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर. अगर जब आप अपने बालों में एक प्लास्टिक का स्केल रब करें और उसके बाद उसे छोटे पेपर के पीसेस के पास ले जाएं तो उन पेपर्स को ये स्केल अट्रैक्ट कर लेता है, उस पर चिपक जाते हैं. कॉमन एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में दिया है, पहले पूछा भी गया है. रिमेंबर ऑल्सो व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विथ पॉलीथीन. प्लास्टिक का जो रिफिल होता है पेन के अंदर डालने वाला, जब आप उसे एक पॉलीथीन में रब करें, इट अक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज. तो उस रिफिल के अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाएगा. Similarly, when a plastic comb is rubbed with dry hair, it acquires a small charge. Question बन सकता है, what will happen when a plastic comb is rubbed with dry hair or silk cloth? It will acquire a small charge is the answer. Now these objects are charged objects. In the process of charging, the refill and the plastic comb, दोनों की बात चल रही है. प्लास्टिक रिफिल ऊपर बताया, नीचे प्लास्टिक कोम बताया. And as well as polythene and hair, they also get charge. तो जब आप इस तरह की रबिंग की एक्टिविटी करेंगे तो एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स में जिनके पास एक चार्ज है उन्हें हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहेंगे. फर्दर, अ चार्ज्ड बैलून रिपेल्ड अ चार्ज्ड बलून. जब हमने इस तरह से दो बैलून्स को चार्ज किया तो एक बैलून दूसरे को रिपेल कर रहा था. A charged refill repelled a charge. Repel मतलब उससे दूर जाना. A charged refill repelled a charged refill. एक चार्ज रिफिल दूसरे चार्ज रिफिल को रिपेल कर रहा था, मतलब उससे दूर जा रहा था. But a charged balloon attracted a charged refill. बेसिकली पॉइंट यहाँ पर ये लोग ये बताना चाह रहे हैं कि बैलून और बैलून का चार्ज सेम है, दोनों का जो सिमिलर चार्ज होने की वजह से वो रिपेल कर रहे हैं. रिफिल और रिफिल का चार्ज भी सेम है, इसीलिए वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. लेकिन बैलून और रिफिल का चार्ज अलग अलग है, इसीलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है दैट इन बैलून देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज. इट इंडिकेट्स दैट द चार्ज ऑन द बैलून इज ऑफ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑफ द रिफिल. तो दोनों का, बैलून का और रिफिल का चार्ज अलग अलग. सो कैन वी से दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस. क्या हम बता सकते हैं कि चार्ज दो अलग अलग तरीके होते हैं, या कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर while charges of different kind attract each other? We know that plus charge they will repel, plus charge minus charge they will attract. So we can say that unlike charge will attract, like charge will repel. Now it is a convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with silk as positive. क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि जब हम एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे तो किसमें क्या चार्ज आएगा. जब हम एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे, सो वी कैन से दैट चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क इज पॉजिटिव. तो ग्लास रॉड का चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. और अगर ग्लास रॉड का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा तो सिल्क का चार्ज नेगेटिव हो जाएगा. यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सिल्क को क्या चार्ज मिलेगा, ग्लास रॉड को क्या चार्ज मिलेगा. ग्लास रॉड को प्लस चार्ज मिलेगा, सिल्क को
माइनस चार्ज मिलेगा. द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव चार्ज. हियर देयर इज अ बेसिक एग्जांपल. ग्लास रॉड लिया है हमने, उसमें प्लस चार्ज है, सिल्क के साथ रब किया तो सिल्क में नेगेटिव चार्ज चला गया, ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज चला गया. It is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene, there is a attraction between the two. बताया जा रहा है कि जब एक चार्ज ग्लास रॉड को एक चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ जिसको हमने पॉलीथीन के साथ रब किया है, जब इन दोनों को आसपास लेके आते हैं प्लास्टिक स्ट्रॉ और ग्लास रॉड को, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन देखने को मिलता है. तो यहाँ पर किसको कौन सा चार्ज आ रहा है? Plastic straw would carry a negative charge, glass rod will carry a positive charge. तो ग्लास रॉड को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और प्लास्टिक स्ट्रॉ को नेगेटिव चार्ज मिलेगा. क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फर्दर, द इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक चार्जेस. स्टैटिक मतलब रुके हुए. They do not move by themselves. Very important point. Charges do not move by themselves. Static charges specifically वो move नहीं होते. When charges move, they constitute an electric current. Question बन सकता है, what happens to the charges when they start moving? The moment they start moving, they become electric current. There are no more static charge. जब तक वो static है वो एक जगह पर रुके. ग्लास रॉड का है तो ग्लास रॉड पर ही है. प्लास्टिक स्ट्रॉ में है तो प्लास्टिक स्ट्रॉ में मूव नहीं हो रहा है, वो उसी बॉडी पर है. पर जैसे ही ये मूव होना शुरू हो जाएंगे ये इलेक्ट्रिक करंट बन जाएंगे. The current circuit which makes a bulb glow or the current that makes a wire hot is nothing but a motion of charges. जो इलेक्ट्रिक करंट हम देखते हैं वो क्या है? चार्जेस ही हैं पर वो मोशन में है. नेक्स्ट, फर्दरिंग द some more examples, the aluminum foil strips receive the same charge from the charge refill through the paper clip. So aluminum foil, aluminum is a metal. We know metals are good conductors of electricity. The strips carrying similar charge repel each other and they become wide open. Such a device can be used to test whether an object is carrying charge or not. This device is called electroscope. पहले electroscope पर question पूछा गया है. A device which is used to test whether an object is carrying charge or not. So we see that the electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. हम इलेक्ट्रिकल चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू बाय द यूज ऑफ अ मेटल कंडक्टर. टच द एंड ऑफ अ पेपर क्लिप जेंटली विथ हैंड एंड यू विल फाइंड अ चेंज इन द फॉइल स्ट्रिप्स. दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट. एंड व्हेन वी रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉइल स्ट्रिप्स एंड टचिंग द पेपर क्लिप, every time you will find that foil strips collapse as soon as you touch the paper clip with hand. The reason why this happens, ये बता रहे हैं, that the foil strips lose charge to the earth through your body. We say that the foil strips are discharged. तो ये charge और discharge हो रहे हैं. The process of transferring of charge from a charged object to the earth is called earthing. Question पहले earthing पर बना हुआ है. What is earthing? Earthing is the process of transferring of charge from charged object टू अर्थ. चार्ज के ट्रांसफर को ऑब्जेक्ट से अर्थ में जाने को ही हम अर्थिंग कहते हैं. इलेक्ट्रोस्कोप पर भी क्वेश्चन बना है, ऑब्जेक्ट के डिस्चार्ज होने पर भी क्वेश्चन बना है, अर्थिंग पे भी क्वेश्चन बना है. नाउ टॉकिंग अबाउट द अर्थिंग, अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अगर किसी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक करंट का लीकेज हो जाए, इसीलिए बिल्डिंग में अर्थिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि हमें उससे प्रोटेक्शन रहे. एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ लाइटनिंग. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू दिस डायग्राम the mechanism of lightning or lightning in terms of charges which is produced by rubbing. During the development of thunderstorm, जब thunderstorm develop होता है तो जो एयर है वो अपवर्ड्स मूवमेंट करने लगता है, विंड जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगती है. यू कैन सी हियर इन द डायग्राम द एयर इज मूविंग अपवर्ड्स. एयर ऊपर की तरफ जाने लगती है एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स दे कम डाउनवर्ड्स. वाटर पानी जो है वो नीचे आने लगता है. थंडरस्टॉर्म है तो
पानी नीचे की तरफ आएगा और एयर ऊपर की तरफ जाएगी। अच्छा, जब पानी नीचे की तरफ आएगा और एयर ऊपर की तरफ जाएगी और बहुत तेजी से जब ये मूवमेंट होगा तो चार्जेस क्रिएट होंगे और चार्ज सेपरेट होने लगेंगे, अलग अलग होने लगेंगे। अब ये चार्ज तो क्रिएट होते हैं लेकिन चार्जेस का सेपरेशन अभी तक एक्सप्लेन नहीं हो पाया है। लेकिन इस चार्जेस के सेपरेशन से आप देख सकते हैं कि क्लाउड्स में ऊपर की तरफ प्लस चार्ज बने हुए हैं। टॉप पर आप देख सकते हो यहाँ पर प्लस चार्ज बने, तो क्लाउड में ही ऊपर की तरफ प्लस चार्ज बना होगा और नीचे की तरफ क्लाउड के निचले हिस्से में माइनस चार्ज बना होगा। नेगेटिव चार्ज विल बी इन द क्लाउड्स, देयर विल बी टू टाइप ऑफ चार्जेस, अपर साइड पॉजिटिव चार्ज, लोअर साइड नेगेटिव चार्ज। एंड यू ऑल्सो सी कि ग्राउंड की तरफ भी पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, जमीन में ग्राउंड में भी पॉजिटिव चार्ज बना हुआ होगा। तो आपको ये तीन तरह के चार्ज दिख रहे हैं, क्लाउड में ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव और ग्राउंड में पॉजिटिव चार्ज। नाउ व्हाट विल हैपन, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज विल ट्राई टू अट्रैक्ट, पर बीच में क्या है, बीच में एयर है। नाउ रिमेंबर एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब ये चार्ज बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जब हाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो एयर भी इनको रोक नहीं पाएगा। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होगा कि इसी से एक बहुत ही ब्राइट लाइट निकलेगी, जैसे कि लाइटनिंग की जो स्ट्रीक ऑफ लाइट बोलते हैं, लाइटनिंग की जो होती है, जो बिजली है, जो आप देख सकते हैं वाइट कलर का ये जो बिजली गिर रही है, इसको बोलते हैं स्ट्रीक ऑफ लाइट। बहुत ही ब्राइट होती है, साउंड भी होती है। एंड देन वी सी दिस स्ट्रीक्स, दिस इज लाइटनिंग एंड दिस एक्चुअल प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इस पूरे लाइटनिंग के जो प्रोसेस का जो साइंटिफिक नेम है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। दैट इज द कंप्लीट फिनोमेना। दिस हैज बीन मेंशन्ड इन द शीट, प्लीज गो थ्रू दैट वंस। Further, the process of electric discharge ही lightning है। It can occur between two or more clouds, ये दो या दो से ज़्यादा क्लाउड्स के बीच में हो सकता है, और बिटवीन द क्लाउड्स एंड अर्थ। तो ज़रूरी नहीं है कि लाइटनिंग हमेशा क्लाउड और अर्थ के बीच में हो, ये दो क्लाउड के बीच में भी हो सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपने देखा होगा कई ऐसी भी लाइटनिंग होती है जो ऊपर ऊपर ही रह जाती है, नीचे नहीं आती। सो दैट इज द लाइटनिंग बिटवीन द क्लाउड्स। टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटेंड बाय लाइटनिंग लाइक आवर एंसेस्टर्स डिड। तो आज हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमेना. It is basically the electric discharge. Scientists are trying hard to improve this understanding. However, lightning strike could destroy life and property. It is therefore necessary to take measures to protect themselves. हमको पता है लाइटनिंग में हर साल आप सुनते होंगे न्यूज़ में कई कुछ ह्यूमन लॉस हो गया और प्रॉपर्टी लॉस हो गया, तो इससे हमें सेफ्टी मेजर्स की ज़रूरत है. व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स? ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ. तो हमें ओपन प्लेस पर नहीं जाना. अच्छा, इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी रूल्स पर भी पहले क्वेश्चन आए हुए हैं कि हमें ओपन प्लेस पे नहीं रहना. सेकंड, हियरिंग थंडर इज अ अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस. जैसे ही आप थंडर सुने तो आप एक सेफ प्लेस पर जाएं. आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस. जब आप सेफ प्लेस पर हैं और आपने लास्ट थंडर सुना तो तुरंत बाहर आप मत आइए, थोड़ी देर आप वहाँ पर वेट करिए. Now what is a safe place they are talking? Finding a safe place. A house or a building is a safe place. किसी घर में चले जाएं, किसी बिल्डिंग में चले जाएं, this is a safe place. क्यों? क्योंकि बिल्डिंग में अर्थिंग होता है तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक से वो प्रोटेक्ट करेगा. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय कार और बाय बस यू आर सेफ इनसाइड विथ विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यू शुड क्लोज द विंडोज. अगर आप बस में हैं या कार में हैं तो विंडोज आपको बंद रखनी चाहिए. So what is it that we should do during a thunderstorm? First, open vehicles like motorbikes, tractors, construction machinery, open cars, these are not safe. कोई भी open vehicle नहीं होना चाहिए. Open fields, tall trees, shelter in parks, elevated places, they do not protect us from lightning strokes. अगर आप किसी हायर टॉल जगह पर चले जाएंगे, एलिवेटेड जगह पर चले जाएंगे तो ये भी आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता. कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म हो तो आप अम्ब्रेला कैरी मत करिए. It can attract. Take shelter under shorter trees. अगर आप जंगल में हैं तो आप छोटे जो पेड़ होते हैं, शॉर्टर जो ट्रीज होते हैं, उसके अंडर में आप शेल्टर लीजिए. If no shelter is available and you open field, stay far away from all trees. अगर आप एक ओपन फील्ड में हैं तो आप ट्रीज से दूर रखिए because they can attract lightning. Further, we should stay away from poles or other metal objects.
वी शुड नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, इंस्टेड स्क्वैट लो ऑन द ग्राउंड। ये स्क्वैट पोजिशन है, आप देख सकते हैं। वी शुड प्लेस आवर हैंड्स ऑन आवर नीज विथ योर हेड बिटवीन द हैंड्स। अपने हैंड्स जो है वो नीज के ऊपर रख लीजिए और अपना हेड वो है वो अपने हैंड्स के बीच में आप रख लें। दिस पोजिशन मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया पर पूछ सकता है। सेफेस्ट पोजिशन, इट इज अ लो स्क्वैट ऑन द ग्राउंड पोजिशन। दिस इज अ सेफ पोजिशन ड्यूरिंग लाइटनिंग। फर्दर, इनसाइड द हाउस, जब आप घर के अंदर हैं तो क्या करना है? लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स। रिमेंबर, lightning is an electrical discharge and all these are metals, so they attract the electrical discharge. During a thunderstorm, contact with these should be avoided. इन चीज़ों से हमें contact नहीं करना है. It is safer to use mobile phones and cordless phones. हम mobile phone use कर सकते हैं या cordless phone use कर सकते हैं. However, it is now not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone. पर ऐसे किसी person को phone मत करिए जो आपका phone wired phone से लेने वाला है. बाथिंग शुड बी अवॉइडेड, हमें नहाना नहीं चाहिए ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ रनिंग वाटर. रनिंग वाटर से कॉन्टैक्ट ना हो इसलिए बाथिंग एक्टिविटी अवॉइड करिए. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक कंप्यूटर्स, टीवीज शुड बी अनप्लग्ड. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो टीवी है, कंप्यूटर है, इसको आप अनप्लग कर दीजिए. इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म. सो इलेक्ट्रिकल लाइट्स होते हैं उसको आप ऑन रख सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा. लाइटनिंग कंडक्टर, क्वेश्चन पहले पूछा गया है लाइटनिंग कंडक्टर पे. लाइटनिंग कंडक्टर, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग. लाइटनिंग के इफेक्ट को कम करने के लिए या उससे प्रोटेक्शन के लिए लाइटनिंग कंडक्टर हम यूज़ करते हैं. क्या है ये? इट इज़ ए मेटालिक रॉड, मेटल की एक रॉड है. इट इज़ टॉलर देन द बिल्डिंग. इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो लाइटनिंग कंडक्टर है क्या वो बिल्डिंग से टॉलर है या शॉर्टर. इट इज बिल्डिंग से टॉलर होना चाहिए. इट इज़ इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन. तो जब बिल्डिंग जब बन रही होती है तभी हम उसके वॉल्स में ये रॉड लगा देते हैं. वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउट इन द एयर. इस रॉड का एक एंड हम हवा में रखेंगे एंड द अदर इज बरीड डीप इन द ग्राउंड, और दूसरा हम ग्राउंड में बरी कर देंगे. द रॉड प्रोवाइड्स ईजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड. तो जब लाइटनिंग होगी, जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा तो बिल्डिंग पर उसका इफेक्ट नहीं होगा. ये रॉड उस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेगी और उसे ट्रांसफर कर देगी टू द ग्राउंड, अर्थिंग का काम करेगी. द मेटल कॉलम यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग्स, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस टू सम एक्सटेंट. हर एक बिल्डिंग में मेटल कॉलम्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, वाटर पाइप्स होते हैं जो मेटल्स के बने होते हैं. ये भी हमें लाइटनिंग से, थंडर से, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से प्रोटेक्ट करते हैं. बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म. लेकिन थंडरस्टॉर्म जब हो रहा हो तो हमें उन्हें टच नहीं करना चाहिए. In this diagram here you can see this is the lightning conductor. ये ऊपर एक रॉड है, आप देख सकते हैं. तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा तो ये सीधा इसके थ्रू पास होकर अर्थ में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा. ये कॉपर की एक प्लेट है, ये सारा चार्ज बिल्डिंग में कुछ अफेक्ट नहीं करेगा. दिस इज कॉल्ड द लाइटनिंग कंडक्टर. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द अर्थक्वेक्स. Now we have learned about thunderstorm and lightning. Earlier we have also learned about cyclones. These natural phenomena can cause large scale destruction of human life and property. ये ऐसे phenomena है जिससे human life का destruction भी होता है, property का नुकसान भी होता है. Fortunately these phenomena can be predicted to some extent. लेकिन हमने देखा कि thunderstorm, lightning, cyclone, इसको हम कुछ हद तक पता कर सकते हैं कि ये कब आने वाला है या आ रहा है. The weather department can warn about a thunderstorm developing in some area. आपने देखा भी न्यूज़ में अलर्ट भी आते रहते हैं कि यहाँ पर थंडरस्टॉर्म आ सकता है, यहाँ पर हैवी रेन हो सकते हैं. तो कुछ एरियाज में इसको प्रेडिक्ट किया जाता है. थंडरस्टॉर्म अकर्स, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन अकम्पनिंग इट. बता रहा है कि अगर थंडरस्टॉर्म होता है तो हमेशा उसके साथ लाइटनिंग भी होती है और साइक्लोन्स भी होते हैं. So we get time to take measures to protect ourselves from the damage caused by these phenomena. और अगर हमें पहले से ही पता चल गया कि थंडरस्टॉर्म आ रहा है, साथ में लाइटनिंग होगी, साइक्लोन होने के चांसेस हैं, तो हम अपने सेफ्टी मेजर्स पहले से ही ले सकते हैं. कंट्रास्ट कर रहे हैं इसके साथ. देयर इज हाउएवर वन नेचुरल फिनोमेना विच वी आर नॉट येट एबल टू प्रेडिक्ट एक्यूरेटली. लेकिन एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना भी है जिसे हम अभी तक पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते. इट इज़ द अर्थक्वेक. इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज स्केल. देखा है आपने, अर्थक्वेक आता है, सब कुछ
खराब हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, टूट जाता है. A major earthquake occurred in India on 8th October 2005 in Uri in Tangdhar towns of North Kashmir. Before that, a major earthquake occurred on 26th February 2001 in Bhuj district of Gujarat. तो ये दो मेजर अर्थक्वेक हुए हैं इंडिया में. वैसे छोटे मोटे बहुत सारे आप देखते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे, बट दीज वर द टू मेजर विच कॉज्ड मैसिव डिस्ट्रक्शन. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक होता क्या है. अर्थक्वेक is a sudden shaking or trembling of earth which lasts for a very short time. Shaking of earth बहुत थोड़ी देर के लिए. It is caused by the disturbance deep inside the earth crust. क्यों होता है ये? क्योंकि अर्थ के क्रस्ट के अंदर थोड़े डिस्टर्बेंस होते हैं. समझते हैं. अर्थक्वेक अकर ऑल द टाइम, ऑल ओवर द अर्थ. दे आर नॉट इवन नोटिस्ड. मेजर अर्थक्वेक्स आर लेस फ्रीक्वेंट. अर्थक्वेक क्या है? हमेशा होते रहता है. शेकिंग ऑफ अर्थ चलती रहती है, बहुत होती है, पर वो मेजर नहीं, माइनर होती है. मेजर अर्थक्वेक बहुत ही कम होते हैं, और जब ये होते हैं दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल. आपने देखा ही है जब अगर मेजर अर्थक्वेक होगा तो बिल्डिंग्स पर इम्पैक्ट होगा, ब्रिजेस पर इम्पैक्ट होगा, डैम्स पर इम्पैक्ट होगा, लोगों की जान जाएगी, कई बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, कैजुअलिटीज होती हैं. देयर कैन बी अ ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज. सुनामी इज अ underwater earthquake or earthquake in an ocean. Tsunami, however, is also volcanic eruption in the ocean. A major tsunami occurred in the Indian Ocean on 26 December 2004. All the coastal areas around the ocean suffered huge losses. दिसंबर 2004 में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी हुआ, और जितना भी इंडिया के जो कोस्टल एरियाज थे उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कश्मीर अर्थक्वेक. यू कैन सी द मैसिव डिस्ट्रक्शन इट कॉस्ट. सारी बिल्डिंग्स वगैरह टूट गई हैं, गिर गए हैं, घर, ह्यूमन लॉस हुआ है, प्रॉपर्टी लॉस हुई है. Comparing this with the ancient times, in the ancient times people did not know the true cause of earthquake. Ancient times में हमें earthquake का true cause, actual reason नहीं पता था. Now we know that the tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of earth called the crust. अब हमें समझ में आया है कि ये जो शेकिंग होती है इसको ट्रेमर्स कहते हैं. ये क्यों होती है? क्योंकि अर्थ के क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट की जो अपर मोस्ट लेयर है वहाँ पर डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलता है, और उसी के डिस्टर्बेंस की वजह से हम अर्थक्वेक को फील करते हैं. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी लेयर की डिस्टर्बेंस की वजह से अर्थक्वेक फील किया जाता है. आंसर इज uppermost layer of earth. Basic picture to understand the shape of earth. This is the crust. देखते हैं crust है, mantle है, outer core and inner core. So crust is the layer, rather uppermost layer of the crust is the region where the disturbance occur, and because of this disturbance the earthquake will occur. Next, the outermost layer of earth is not in one piece. हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर है ये सिंगल पीस नहीं है, फ्रैगमेंटेड है, मतलब कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है. ईच फ्रैगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट, रादर टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं. लिथोस्फीयर की बात चल रही, जो लैंड पार्ट है हमारा, ये कई सारे प्लेट्स में डिवाइडेड है. एंड दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन. ये जो प्लेट्स हैं रुके हुए नहीं है, ये चल रहे हैं, ये मूव करते रहते हैं, लेकिन बहुत ही स्लोली मूव करते हैं, इसलिए हम उसे एक्सपीरियंस नहीं करते. एंड व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर, जब ये एक दूसरे से ब्रश अप करते हैं, रगड़ खाते हैं, और अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन, जब ये आपस में एक दूसरे से टकरा रहे, मूवमेंट कर रहे हैं तो टकराएंगे, और जब ये एक दूसरे से रगड़ खाते हुए निकलते हैं या एक दूसरे से टकराते हैं, और इन टकराव की वजह से, इस कोलिजन की वजह से एक प्लेट अगर दूसरे प्लेट के अंदर चली जाए, दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट. इसकी वजह से अर्थ के क्रस्ट में डिस्टर्बेंस होगा. फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू प्लेट्स, ये आपस में मूव हो रहे हैं, पास आए, कोलिजन हुआ, और कोलिजन होने की वजह से एक जो अर्थ की प्लेट है ये नीचे चली जाए, और अगर ये प्लेट्स एक दूसरे के नीचे आ जाएं तो इसी से अर्थ के क्रस्ट पे डिस्टर्बेंस होगा, और इसी डिस्टर्बेंस से अर्थक्वेक होगा. इट इज़ दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. और इसी डिस्टर्बेंस की वजह से, एक प्लेट दूसरे से टकराने की वजह से, ज़ोर से टकराने की वजह से, एक दूसरे के नीचे आ जाने की वजह से जो डिस्टर्बेंस होगा क्रस्ट पे, वही अर्थक्वेक होता है. ये आप देख सकते हैं, ये फ्रेगमेंटेड प्लेट्स हैं ये. सो अर्थ हमारा क्या है, एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है. आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पर प्लेट्स बने, डिफरेंट प्लेट्स.
नेमिंग भी की है, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। उनके कांस्टेंट मूवमेंट हो रहे हैं तो कभी कोलाइड भी होते हैं, कभी कोलाइड जोर से होते हैं, कभी धीरे होते हैं। कोलाइड होकर अगर वो एक दूसरे के नीचे पहुंच गए, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो क्रस्ट में अर्थक्वेक हम फील करेंगे। एक और पिक्चर है थोड़ा और अच्छे से डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये इनकी मूवमेंट हो रही है। अच्छा, यहां पर आपने देख सकते ब्रश निकल रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि वो कोलाइड हो रहे हैं। तो ये वाली जो प्लेट है ये नीचे जा रही है, ये वाली प्लेट थोड़ी ऊपर आ रही है। इसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस होता है दैट इज द अर्थक्वेक। What causes an earthquake? It is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur. Tremors on the earth can also be caused when a volcano erupts. अब ये हम बता नहीं सकते कि earthquake कब होगा, क्योंकि tremors जो shaking होती है ये volcano की वजह से भी होती है, और if a meteor hits the earth or an underground nuclear explosion is carried out. So there are many reasons there can be shaking of अर्थ क्रस्ट। मीटियोर के हिट होने की वजह से, अगर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाए उस वजह से, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। दैट इज वाई हम बता नहीं सकते कि कब अर्थक्वेक आ सकता है। हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ्स प्लेट। वैसे तो डिस्टर्बेंस के कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन रीजन होता है वो अर्थ की प्लेट्स का मूवमेंट की वजह से होता है। फर्दर going deeper into this, since earthquakes are caused by the movement of plates, the boundaries of plates are the weak zones where earthquakes are more likely to occur. क्या मतलब है इसका पिक्चर में देखें समझ में आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये प्लेट्स हैं। अब आप जब इनका कोलिजन होगा ये प्लेट्स आपस में टकराएंगे, प्लेट्स टकराएंगे, बाउंड्री प्लेट्स की, यू कैन will be felt most। तो जब भी टक्कर होगी यहीं पर डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो जोन है ये थोड़े अर्थक्वेक प्रोन जोन हो जाएंगे, यहीं पर हमें अर्थ एक्सपीरियंस होने को देखने को मिलता है। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इन दिस पार्ट, कि जो इनके बाउंड्रीज होते हैं प्लेट्स के वो कमजोर हो जाते हैं, और जब ये बाउंड्रीज कमजोर हो जाते हैं तो इन एरियाज पे अर्थक्वेक का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। यहीं पर शेकिंग की वजह से जो अर्थक्वेक आएगा उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। द वीक जोन्स आर ऑल्सो नोन एज सीस्मिक और फॉल्ट जोन्स। इन वीक जोन्स मतलब बाउंड्रीज, प्लेट्स की जो बाउंड्रीज जो कमजोर हो गई हैं, वीक जोन्स, इनको बोलते हैं सीस्मिक और फॉल्ट जोन्स। इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटन्ड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कुछ, राजस्थान एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन। तो ये सारे इन्होंने बताया कि फॉल्ट जोन या सीस्मिक जोन है, जहाँ पर प्लेट्स, जहाँ से प्लेट्स होकर गुजर रही हैं, तो वहाँ पर हमें अर्थक्वेक एक्सपीरियंस हो सकता है। बाकी जगह पर भी हो सकता है, बट दीज आर मोर प्रोन। In this diagram you can see the different plates, the Indian plate, the Eurasian plate, and these zones, these are the slightly earthquake prone or fault zones. This picture shows the movement of Indian earth plate. ये जो इंडियन प्लेट है इसका मूवमेंट इस तरफ दिखा रहा है। सी दिस ब्लैक, दिस शोज दैट द इंडियन प्लेट इस तरफ मूव हो रही है। ये यूरेशियन प्लेट है, ये इधर आ रही है, तो इनका आपस में कोलिजन हो सकता है। नेक्स्ट, द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिक्टर स्केल। तो कोई भी अर्थक्वेक कितना पावरफुल है उसकी स्केल होती है रिक्टर स्केल। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिक्टर स्केल। क्वेश्चन पूछा गया है that when earthquake is destructive, answer is when it is 7 or greater. Both Bhuj and Kashmir earthquakes had magnitude greater than 7.5.
थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है क्योंकि वैल्यू टेक्स्ट बुक में दी हुई है. फर्दर, द ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ये जो ट्रेमर्स होते हैं इससे अर्थ की सरफेस पर वेव्स बनते हैं और इन वेव्स को हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड सीस्मिक वेव्स. तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीस्मिक वेव्स कहाँ पर फील की जाती है? सरफेस ऑफ अर्थ पर. क्यों होती है? शेकिंग ऑफ अर्थ की वजह से, ट्रेमर्स की वजह से. द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सीस्मोग्राफ. इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि सीस्मिक वेव्स को कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है? आंसर इज सीस्मोग्राफ में रिकॉर्ड किया जाता है. So this is a device, this is an instrument. Richter scale is a scale, it is not an instrument. We'll see both of them. The instrument is simply a vibrating rod or a pendulum which starts vibrating when tremor occurs. तो इसमें एक वाइब्रेटिंग रॉड होती है, एक पेंडुलम होता है जो जैसे ही ट्रेमर होने लगते हैं ये वाइब्रेट होने लगती है. अ पेन इज अटैच टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम. द पेन रिकॉर्ड्स द सीस्मिक वेव्स ऑन अ पेपर विच मूव्स अंडर इट. और क्या कहते हैं, जो वाइब्रेटिंग सिस्टम है उससे एक पेन जोड़ देते हैं तो वो पेन वो सीस्मिक वेव्स को ड्रॉ करने लगता है. By studying these waves, scientists can construct a complete map of earthquake. इन waves को स्टडी करके हम एक पूरा मैप बना सकते हैं अर्थक्वेक का. They can also estimate its power to cause the destruction. और इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये जो अर्थक्वेक है ये डिस्ट्रक्शन करने के लिए कितना केपेबल है, इसकी क्या पावर है. Here you can see the seismograph. पेंडुलम है, पेन है ऊपर, वाइब्रेशंस होंगी तो इससे ऑटोमेटिकली इस तरह के शेप्स बनने लगेंगे जिससे हमें ये समझ में आएगा कि ये कितना पावरफुल है. Now talking a little bit about the Richter scale, like many other scale, in science Richter scale is not linear. Not linear means, this means that an earthquake of magnitude 6 does not have 1.5 times the destructive energy of an earthquake of magnitude 4. In fact, an increase of 2 in magnitude means 1000 times more destructive energy. Therefore, an earthquake of magnitude 6 has 1000 times more destructive energy देन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4. बात यहाँ पर ऐसी है कि जैसा हम लीनियर रिलेशन बनाते हैं या स्क्वायर बेस्ड रिलेशन बनाते हैं, जैसा हम साउंड के केस में लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का रिलेशन बनाते हैं, लाउडनेस इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, उसी तरह ये रिक्टर स्केल भी काम करता है. एक यूनिट का मतलब ऐसा नहीं कि कोई फिक्स अमाउंट से डिस्ट्रक्शन बढ़ेगा. एक यूनिट से मतलब है कि 500 टाइम्स 600 टाइम्स ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है. कोई लीनियर स्केल नहीं है. जैसा इन्होंने एग्जांपल में बताया कि अगर एक रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक बता रहा है मैग्नीट्यूड 4 और दूसरा बता रहा है 6, तो इसका ये मतलब नहीं कि इट इज़ 4 and 6 द रिलेशन इज़ 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स कहीं, तो 1.5 टाइम्स डिस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन 1000 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है. तो ये कोई लीनियर रिलेशन इनका ऐसा नहीं है. तो उन्होंने बताया कि अगर 2 मैग्नीट्यूड का इंक्रीज है मतलब 1000 टाइम्स ज़्यादा ये डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक बन सकता है. वी वर टॉकिंग अबाउट दैट इट क्रिएट्स वेव्स ऑन द अर्थ सरफेस. ये जहाँ पर अर्थक्वेक हो रहा है उस पॉइंट को हम एपिसेंटर कहते हैं, वेयर द एक्चुअल shaking occurs, and you can see that it is traveling in all the directions. ये हर सर्कुलर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके सर्कुलर वेव्स बन रहे हैं, तो it is traveling in all the directions. अच्छा, जिस जहाँ पर अर्थक्वेक होता है उसके ठीक ऊपर का पॉइंट अर्थ सरफेस का, इसे दिस इज एपिसेंटर, सॉरी, and this point where this actual phenomena is occur. Now here you can see the map of a earthquake. जहाँ पर earthquake आया है, जहाँ पर disturbance जहाँ से शुरू हुई है, that point is called focus. और ठीक उसके ऊपर का जो point है ground पर उसे बोलते हैं epicenter. So epicenter is a place on the earth surface. Focus is the point where the shaking starts. And these waves are the seismic waves, as you can see. Protection against earthquakes. Earthquake cannot be predicted. We have also seen that they can be highly destructive. It is therefore important that we take necessary precautions
to protect ourselves all the time. People living in seismic zone, जो fault zones पर रहते हैं, जो earthquake prone zones पर रहते हैं, where the earthquakes are more likely to occur, have to be specifically prepared. First of all, the building in these zones should be so designed that they can withstand major tremors. तो सबसे पहले तो यहाँ पर जिस तरह के कंस्ट्रक्शन होने चाहिए वो इस तरह के होने चाहिए, एल शेप होने चाहिए, ताकि वो ट्रेमर्स को, शेकिंग को एब्जॉर्ब कर सके, विथस्टैंड कर सके. मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल. और आजकल हमारे पास ऐसी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग डिज़ाइंस हैं जिससे ऐसा हो सकता है. इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज़ क्वेक सेफ. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन ना बनाएं आप, अर्थक्वेक सेफ डिज़ाइन बनाएं. कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स. In highly seismic areas, the use of mud or timber is better than using heavy construction material. जहाँ पर बहुत ज़्यादा seismic prone जो zone है वहाँ पर आप mud और timber use करें rather than आप heavy construction material use करें. Keep roof as light as possible. जो roofs होती हैं, जो छत होती है उसे बहुत light रखें. In case the structure falls, the damage will not be heavy. तो अगर structure गिरा तो damage ज़्यादा नहीं होगा. It is better if the cupboards एंड शेल्व्स आर फिक्स टू द वॉल. कबर्ड और शेल्फ कैसे बनाने चाहिए, वॉल में चिपका देने चाहिए ताकि शेकिंग से वो गिरे नहीं, सो दैट दे डू नॉट फॉल ईजिली. बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स, सो दैट इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन पीपल. तो ऐसी आप जगह पर वॉल क्लॉक रख दें जहाँ पर वो शेकिंग हो, ट्रेमर्स हो, तो लोगों के ऊपर गिरे लगे. Since some buildings may catch fire due to earthquake, it is necessary that all buildings, especially tall buildings, have firefighting equipments in working order. तो कई बार ऐसा होता है earthquake की वजह से आग भी लग जाती है कुछ बिल्डिंग्स. तो ऐसी जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर आग लगने का खतरा है वहाँ पर हमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को प्रॉपर रखना चाहिए, इन अ रनिंग कंडीशन रखना चाहिए. द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की में एक इंस्टीट्यूट बता रहे हैं, द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI हैज़ डेवलप्ड नो हाउ टू मेक क्वेक रेजिस्टेंस हाउसेस. तो कैसे क्वेक रेजिस्टेंस हाउसेस कैसे बनाने हैं ये इन्होंने डेवलप किया है CBRI. अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, रुड़की में है, पूछा जा सकता है. इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक, टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. स्टेप्स बताएं क्या क्या, अगर अर्थक्वेक आ जाए तो क्या कर सकते हैं. इफ़ यू आर होम, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स. तो आप एक टेबल के नीचे छुप जाएं और वहीं रहें जब तक शेकिंग बंद नहीं हो जाती. स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू. इफ यू आर इन बेड, डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो. इफ यू आर आउटडोर्स, क्या करना है, घर के आप बाहर हैं, घर के अंदर है बता दिया है, ये बेड में है तो आप सर के ऊपर पिलो रख लीजिए, उठिए मत, हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहिए, टॉल ऑब्जेक्ट से दूर रहिए, आपके ऊपर गिर सकते हैं. और बाहर हैं तो क्या करना है, फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स. किन किन चीज़ों से दूर रहना है, बिल्डिंग से दूर रहना है, पेड़ों से दूर रहना है, ओवरहेड पावर लाइन से दूर रहना है. ड्रॉप टू द ग्राउंड, ग्राउंड में बैठ जाना है. इफ़ यू आर इन अ कार और अ बस, डू नॉट कम आउट. आप कार में है, बस में है, बाहर मत आइए. आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट. ड्राइवर को कहिए कि वो धीरे धीरे गाड़ी चलाकर एक क्लियर स्पॉट में, ओपन स्पॉट में आपको ले जाए. डू नॉट कम आउट टिल द ट्रेमर्स स्टॉप. और तब तक बाहर मत आइए जब तक ट्रेमर्स रुक नहीं जाते. समराइजिंग व्हाट वी हैव डन टुडे. सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी चार्ज बाय रबिंग विथ अदर ऑब्जेक्ट्स. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करके चार्ज किए जा सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. The electrical charges produced by rubbing are called static charges. When charges move, they constitute an electric current. Moving charge को electric current कहते हैं. An electroscope, the device to detect the charge, may be used to detect whether a body is charged or not. Question बन सकता है. The process of transfer of charge from a charged object to the earth is called earthing. Earthing क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर एक चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में, अर्थिंग कहेंगे. The process of electric charge between clouds and or between different clouds cause lightning. Lightning क्यों होती है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से. किसके बीच में हो सकती है, क्लाउड और अर्थ के बीच में, क्लाउड और क्लाउड के बीच में. Lightning strike could destroy life and property. Lightning conductors can cause buildings from the effect of lightning. Lightning conductors buildings को प्रोटेक्ट करेंगे किससे, lightning के इफेक्ट से. An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth.
अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. हमने देखा when the two plates will go under each other, एक प्लेट जब दूसरे के अंदर चले जाए. It is not possible to predict the occurrence of an earthquake. Earthquake tend to occur at the boundaries of Earth's plates. These boundaries are known as fault zones. बाउंड्रीज पे टकराव होता है तो वो कमजोर होती है, वहीं पर ज्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस. Destructive energy of earthquake is measured on the Richter scale. The earthquake measuring 7 or more on Richter scale can cause severe damage to life and property. टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में इससे जरूर